description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to all praise is due. I stand in awe of you. One more time. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to all praise is due. I stand in awe of you. Beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to all praise is due. I stand in awe of you. 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 Holy God, to all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you, my Lord. Let's all meet next Sunday. May God be with you. God bless you all. See you all next time. तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं।
सा कभी नहीं। यीशु मसीह ओ महिमा तेरी गाए आसमान गाए ज़मीन। Yes, Lord. ये ज़मीन, ये आसमां, ये सारी प्रकृति परमेश्वर आपकी स्तुति गान करती है। कोई नहीं तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह ओ महिमा तेरी गाए आसमान गाए ज़मीन। यीशु मसीह ओ महिमा तेरी गाए आसमान गाए ज़मीन। The heavens and earth, O Lord, praise your name. They worship you, Lord. They sing praises to your Lord, Almighty God. The one who walks with us on the water and the fire. He's with us, walking with us, holding our hands through all the stages of life. अंधेरों में रोशनी, तू ही मंजिल रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है। तू ही हिम्मत जिंदगी है। अंधेरों में रोशनी है। तू ही मंजिल रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है। तेरा ही नाम जिंदगी। हालेलुया, Good evening, church. गुड इवनिंग कलीसिया। Welcome to Wednesday evening service. बुधवार की सभा में आपका स्वागत है। Monsoon has started. बारिश का मौसम शुरू हो चुका है We are all enjoying from home. और हम सब घर बैठ आनंद ले रहे हैं Let's have a great time with God today. और परमेश्वर के साथ बहुत अद्भुत समय हो इसकी आशा करें। For the announcement, और आज की घोषणा के लिए we want to welcome you if you are watching us for the first time. हम आपका स्वागत करते हैं। यदि आप पहली बार देख रहे हैं
You can write something into our comment box. आप कुछ लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। Receive a special booklet from our team. आप हमारी टीम से एक स्पेशल बुकलेट पाएंगे। We have Bible College started team now. हमारा बाइबल कॉलेज शुरू हो चुका है So Pastor Binu's class has been shifted to Monday. और पास्टर बीनू की क्लास जो है वो सोमवार को अब होगी And our new class is going to start on Tuesday. और नई क्लास जो है वो मंगलवार को होगी। Pastor Dharmesh will be taking the class. पास्टर धर्मेश उस क्लास को पढ़ाएंगे And the subject will be spiritual warfare. और वो होगा आत्मिक लड़ाई के बारे में। It will start at 7 o'clock. वो शाम को 7 बजे शुरू होगी। You will get the details in our WhatsApp group. आपको इसकी जानकारी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी। Join us. हमारे साथ जुड़े रहिए Take part in the classes. और क्लास में हिस्सा लीजिए। Apart from that, we have devotions happening on the weekends and the weeks, 6 o'clock in the evening. और इसको हटकर हमारी डिवोशन होती है हर शाम को 6 बजे So you will get the links and the information in our WhatsApp group. और इसकी जो लिंक और जानकारी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी। We have men's time, ladies time happening on the weekends. और शनिवार को हमारा पुरुषों का समय और स्त्रियों का समय होता है Join us for that as well. और इसके लिए भी आप उसमें हिस्सा ले सकते Now हैं। this is what is happening around the week within our church. और ये चीज़ें हो रही है पूरे हफ्ते में हमारे कलीसिया में। If you have any prayer requests, we encourage you to speak to our pastors and ask them to pray for you. You can write a mail to us. और यदि आपकी कोई प्रार्थना या विनंती है तो आप पास्टर को लिख सकते हैं मेल के द्वारा और बता सकते हैं। We will pray for you. हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Thank you so much for धन्यवाद। watching us continuously, हमें लगातार सुनने के लिए धन्यवाद। for receiving all the updates and everything. We advise you to subscribe our YouTube channel. और सारी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। Thank you. धन्यवाद। We are going to hear an introduction from Pastor Dharmesh, and after that Pastor Binu will be preaching. और इसके बाद हम पास्टर धर्मेश का इंट्रोडक्शन सुनेंगे और मुख्य संदेश पास्टर बीनू से हम सुनेंगे। Let's pray for the offering and the message that's going to come up. और हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे और संदेश के लिए जो इसके बाद होने वाला है। Dear Father, thank you Lord for this beautiful evening gathering. पिता प्रभु धन्यवाद इस समय के लिए और इस संगति के लिए इकट्ठा होने के लिए। Thank you Lord that you desire to speak to us. और धन्यवाद प्रभु कि आपने इच्छा रखी है कि आप हमसे बातें करें The relationship that you desire to have with us. और जो संबंध आप जिस संबंध के लिए आप इच्छा करते हैं उसके लिए भी। Thank you so much Lord. Nothing धन्यवाद can प्रभु। compare to it. ये किसी के साथ भी इसकी तुलना नहीं की जा सकती। Lord, we embrace it very highly Lord. और इसको हम बहुत ही महत्व देते हुए कहते हैं। Thank you so much. धन्यवाद प्रभु। Anoint these words that we're going to come up. अभिषेक कीजिए उन वचनों को जो आने वाले हैं। Speak to our hearts, Father. हमारे हृदय से बातें कीजिए पिता। Each and everybody who are hearing this. और हर एक कोई व्यक्ति जो इसे सुन रहा है। Also, Lord, we bring your offering to you, Lord, और हमारी भेंटें आपके पास लेकर आते हैं by faith. और विश्वास से। Lord, we bring what you gave to us to you, Lord, और हम वो लेकर आते हैं आपके पास जो आपने हमें दिया है। to your altar. हमारी वेदी के सामने Bless it आशीषित कीजिए। and use it for your purpose, Lord. आपकी योजना के लिए इस्तेमाल कीजिए। Lord, we pray for salvation. हम उद्धारों के लिए प्रार्थना करते हैं Bless people and touch their souls in this message today that we are going to hear. और उन लोगों के प्राणों को छुए जो वो इस संदेश को सुनेंगे। Thank you so much, Lord. धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। Thank you. धन्यवाद। गुड इवनिंग ग्रेटर ग्रेस। इस शाम में मैं आपके साथ वचन बांटना चाहूँगा और छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस समय को, आज के दिन को प्रभु जी, इस शाम में प्रभु जी आप अभिषेक करना, आप मदद करना प्रभु जी, इन वचनों के द्वारा हमें पिता परमेश्वर बल देना और हम उस वचन के साथ पिता परमेश्वर चलने में मदद करना। धन्यवाद करते हैं, आपकी मदद चाहते हैं, आपका अनुग्रह चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमेन। सो ग्रेट। सो इस शाम में हम ये वचन मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा। यूहन्ना का अध्याय 8, 31 और 32 में लिखता है, यीशु मसीह ने कहा उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, बोलता है यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा।
और इस जगह पे यीशु मसीह उन चेलों से कह रहा है जो उस पे विश्वास करके, उन यहूदियों से जो उन पे विश्वास करके उनके पीछे चले थे। और एक प्रोसेस है एक जगह पे जहाँ पे बोलता है यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। ये एक वहाँ पे बने रहने के बारे में सिद्धांत है, जहाँ पे बोलता है कि वहाँ पे एक प्रोसेस है, एक निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, जहाँ पे मैं बने रहने का ये मतलब ही वो है कि निरंतर उसमें बने रहना, बने रहो ना। यीशु ने कहा तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे ना। एक शिष्य एक जो संबंध के नीचे आगे बढ़ता है, जो सीखता है, जो चल रहा है, जो जीवन में कुछ रिसीव करना, जो ग्रहण कर रहा है और चलते जा रहा है, एक प्रक्रिया जो कंटिन्यू है, निरंतर है। सो उद्धार हमारा विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमें मिला, जो परमेश्वर की ओर से तोहफा है। लेकिन शिष्यता एक चलने वाली वो प्रक्रिया है जहाँ पे मैं एक समय देता हूँ परमेश्वर के साथ, एक कीमत होती है जो मुझे अदा करनी होती है। और वो कीमत एक ही है कि मैं परमेश्वर के साथ उपस्थिति में और उसके अनुग्रह की सोच में बढ़ते जाता हूँ। और लेकिन यहाँ पे उस संबंध की बात करता है कि हम कई बार मसीह जीवन इस दुनिया में हम जीते जीते कई बार धीमा हो जाते। क्यों धीमा हो रहा है? क्यों उस प्रोसेस में हम कई बार उन चीज़ों को जो परमेश्वर ने हमको दी है उसको हम क्यों नहीं जी पा रहे? क्योंकि उसमें कुछ धीमापन आ जाता है ना। एक लौदुकी कलीसिया के बारे में कहा क्योंकि तुम धनी तो हो पर कंगाल हो। क्यों वो कंगालीपन आ गया? क्योंकि मैं हमारे जीवन में कई बार उस व्यस्तता के जीवन में हमारे जीने का तरीका कई बार बदल गया। हमारा गोल तो सही है लेकिन हमारा तरीका शायद से उन चीज़ों में दृष्टिकोण बदल जाता है, जिस वजह से हम उस सही चीज़ों को अपना नहीं पाते और ना चल पाते। जहाँ पे हमारा जो केंद्र है मसीह जीवन का वो हट जाता है और उस केंद्र में हम कई बार अपने जीवन को लाते हैं। तब वो क्या होता है, वो जीवन धीमे धीमे हो जाता है और वो उस प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ पाता। मैं अपने इस लाइफ में तो क्या है ग्रो कर रहा हूँ जो बाहरी चीज़ों में है, लेकिन मैं आत्मिक जीवन में कमज़ोर होता जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा दृष्टिकोण, मेरा जो केंद्र है, मेरा जो सोचने का तरीका है, जहाँ पे मेरी इस आत्मिक जीवन की उन्नति हो सके, वो मैं क्या कर रहा हूँ, लैग कर रहा हूँ। मेरी कमी हो रही है मेरे जीवन में। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं उस वचन को अपने जीवन में रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ। मैं शिष्य बनना, राइट, शिष्य बनना ज़रूरी है। और वो शिष्यता मुझे क्या करेगी, परमेश्वर के संबंध में आगे बढ़ाएगी और एक संबंध को जीना सिखाएगी ना। क्योंकि देखा है ना, जो आत्मिक जीवन ना, कई बार हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है, कई बार वो ऐसा हो जाता है, लकवा मार जाता है, राइट। लकवे का रोगी जैसा होता है, अपाहिज ना, जो देख तो पा रहा है लेकिन वो कार्य में नहीं जी रहा है, उस वर्क में नहीं जी रहा है, उस काम में जो परमेश्वर ने उस जीवन में रखा है उस जीवन में नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि वो अपाहिज हो ना। अपाहिज व्यक्ति कैसा है, वो ना लकवा एक जगह पे है, वो सब कुछ तो देख रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है ना उस जगह पे ना। कई बार ये लॉकडाउन इस खतरे का हमारे विश्वासी जीवन में ये क्या बोलते हैं ना, ये जीवन लेकर आ सकता है ये लॉकडाउन। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान मुझे बने रहना है, मुझे बने रहना है, क्योंकि कई बार संदेह, हमारी निराशाएं, हमारी तकलीफ़ें, हमारी चीज़ें, हमारा जो हर दिन का जो जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, ये सब चीज़ें मुझे क्या करेगी, रोक सकती है मेरे विश्वासी आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने से, और मुझे वो लकवे के जैसा बना सकती है। मैं देख तो पा रहा हूँ लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा हूँ ना, मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ ना।
और लेकिन क्या बोलता है आगे वो वचन, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा ना। स्वतंत्रता के मायने बाय द वे इस दुनिया में अलग है। आज़ादी जिसे बोलते हैं मैं जो मर्जी है मैं कर सकता हूँ ना, ये उसके लिए आज़ादी के मायने। लेकिन मसीह में स्वतंत्रता एक अलग जीवन है, एक अलग नज़रिया है, जो दृष्टिकोण है जिसमें मुझे स्वतंत्रता मिलती है। दूसरा कुरिन्थियों का 3:17 में बोलता है जहाँ पे आत्मा है वहाँ पे स्वतंत्रता है, राइट। वो जो सत्य जो वचन मैं रिसीव कर रहा हूँ वो मेरे जीवन में क्या लेकर आएगा, स्वतंत्रता। क्योंकि मैं किसे जान रहा हूँ, तुम सत्य को जानोगे। सत्य क्या है, यीशु मसीह। तुम यीशु मसीह को जानोगे। यीशु मसीह कैसा है उसको जानोगे। वाह, सो यीशु मसीह को जानना, प्रतिदिन के जीवन में, प्रतिदिन के हिस्से में उस लाइफ को जीना, वो मसीह जीवन की सोच है। और कई बार ये आज़ादी का जीवन जो जैसा है वैसा जीने में क्या है, निराशा है, तकलीफ है, उन चीज़ों को, अकेलापन, खालीपन, ये सारी चीज़ें क्या है लेकर आएगा। लेकिन मेरा आध्यात्मिक सत्य का जीवन जो वचन के साथ मैं जीऊँगा वो मेरे जीवन में स्वतंत्रता लेकर आएगा। और वो आत्मा ना मेरे अंदर दिया गया एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा, रोमियो का 5:5 बोलता है। रोमियो का 5:5 क्या है, पवित्र आत्मा का प्रेम तुम्हारे अंदर उंडेला गया, राइट। और यूहन्ना में 14 में क्या बोलता है यीशु मसीह, 14:16 में, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो तुम्हारे साथ सदा रहेगा। परमेश्वर ने हमको एक सहायक दिया है, पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। और इस लॉकडाउन में भले ही हम मिल नहीं पा रहे, लेकिन हमारे साथ एक संगति है, हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। एक ही वजह से हमें एक आत्मा पिलाया गया, हम एक बॉडी में, एक देह में जोड़ दिए गए। वो है पवित्र आत्मा का जीवन, जो है पवित्र आत्मा हमारे संग जोड़ा गया। मैं विश्वास के द्वारा जिस दिन विश्वास किया उस दिन मेरे अंदर पवित्र आत्मा दिया गया, जो एक मसीह की देह में जोड़ दिया। हमें एक ही आत्मा पिलाया गया, पौलुस बोलता है, और उस देह में और परमेश्वर में हमें वो आत्मा दिया है। और उस आत्मा के साथ, राइट, विश्वासी हर एक उस जिम्मेदारी के साथ, राइट, जिम्मेदारी के साथ, परमेश्वर के अनुग्रह के साथ और उसके वचन को अपने जीवन में बसने देने के साथ में क्या है, उसमें ग्रो करे ना। ये परमेश्वर चाहता है कि हम उसे जानें, क्योंकि वो वचन हमें स्वतंत्र करेगा। वो वचन हमें ना, क्योंकि वो आत्मा की बातें जानता है। दूसरा कुरिन्थियों का, पहला कुरिन्थियों का 2:11 में लिखता है, वहाँ पे बोलता है कि मनुष्य का आत्मा ना, कौन है जो मनुष्य की बातें जान सकता है, केवल वही जो उसका आत्मा है। उसी तरह परमेश्वर की बातें कौन जान सकता है, केवल परमेश्वर का आत्मा। और वो बातें जो उसके प्रेम रखने वालों के लिए, जो आँखों से नहीं देखी, कानों से नहीं सुनी, वो उसके प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए। और वो पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसे जान सकते हैं। और केवल उस पवित्र आत्मा को ना, पवित्र आत्मा को क्या है, प्रतिदिन भरते रहना ना, परिपूर्ण होना। कैसे ना, कुलुसियों का 3:16 वहाँ पे बोलता है, वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो ना। ये उस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का प्रोसेस है, जहाँ पे हम वचन को हर दिन ग्रहण करते हैं, उस पवित्र आत्मा की सोच में, उस अनुग्रह में जीते, जहाँ पे मैं उसके साथ जीता हूँ। प्रतिदिन सोचना, राइट, प्रतिदिन, क्योंकि क्या करेगा, वचन मुझे स्वतंत्र करेगा उस पाप के सामर्थ्य से, उस शैतान के, उस संसार के हाकिम से, उस हर एक उस चीज़ों से जो परमेश्वर के खिलाफ उठती है, जहाँ पे मैं उस वचन के द्वारा जीता हूँ। क्योंकि वो वचन है जो मुझे क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा ना। कई बार हम सोचते हैं अरे ठीक है, मसीह जीवन मिल गया, हम स्वतंत्र हैं, हम सिक्योर है। ऑफ कोर्स सिक्योर है, लेकिन मुझे हर दिन उसके साथ जीना है। कैसे, उसके वचन के साथ। हर दिन मैं उसके वचन की उस सोच में जीता हूँ, जो जीवन है, राइट। दूसरा कुरिन्थियों का 3:18 बोलता है,
अंश अंश हम बदलते जाते हैं। फिर क्या होता है, वो हमारा जीवन एक प्रोसेस की तरफ चला जाता है, राइट। एक अनुग्रह का जीवन जो परिपक्वता की ओर जाता है। मैं उस इच्छा में जीता हूँ जो परमेश्वर की है, उस विल को उस समझने लगता हूँ जो परमेश्वर की है ना। परमेश्वर की जब मैं ये कह पाता हूँ ना, कई बार ये कहना कठिन होता है क्योंकि स्थिति और हालात ऐसे, लेकिन हम रोमियो का 8:28 बोल सकते हैं ना, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर से जुड़ा हूँ, मैं उस पवित्र आत्मा से जुड़ा हूँ, वो जीवन से जुड़ा हूँ जो पवित्र आत्मा से भरा, बनाए रहना, राइट ना। इंग्लिश में वो वहाँ पे है, इफ़ ये कंटिन्यू इन माई वर्ड ना, कंटिन्यू इन माई वर्ड, राइट। निरंतर उस परमेश्वर के वचन में बने रहना, राइट। और ये स्वतंत्रता लेकर आएगा, परमेश्वर को जानने में मदद करेगा। कैसे हम जान सकते हैं? परमेश्वर ने हमको जानने में ना एक ना परमेश्वर का वचन दिया है, हाँ, ताकि हम उसे जान सकें, और पवित्र आत्मा दिया है ताकि हम उसके साथ सोच सके ना। वचन पढ़ना अच्छा है, लेकिन उस वचन के साथ मनन करना और भी बेहतर है। ये हमारा हर दिन का प्रोसेस है। मैं उस मनन, उस अध्ययन में जीता हूँ जहाँ पे मैं उसकी आराधना कर पाता हूँ ना। वो मैं भजन के गीत गाता हूँ। भजन संहिता क्या है? वही है कि मेरी बातें परमेश्वर के पास लेकर जाता हूँ और परमेश्वर का वचन लेता हूँ और प्रोत्साहित होता हूँ, और उस वचन के साथ उस मनन की सोच में जो अनुग्रह के साथ मुझे दिया गया है उसमें जीता हूँ, जो परमेश्वर की महिमा कर पाता है। और वो ये कह पाता है, परमेश्वर तू भला है, तू विश्वास योग्य है। बाय द वे, एक चरित्र स्वभाव जो हमारे जीवन में आता है, जो हर दिन हमें मसीह का मन दिया गया, बाय द वे ना। पहला कुरिन्थियों का अध्याय 2:16 में है, हम में मसीह का मन है ना, हम में मसीह का मन दिया, जो अंश एक प्रोसेस, एक परिपक्वता की, जो अनुभव से हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। हम वचन लेते हैं, उस पर बिलीव करते हैं, और वो ना परिपक्वता की ओर बढ़ता है। और ये हमारे लिए बने रहना ना, यीशु मसीह ने कहा 15वें अध्याय में यूहन्ना के, बने रहो ना। वहाँ पर अबाइड इन मी ना, क्या होता है? बने रहोगे तो फल लाओगे, बने रहोगे तो तुम जो चाहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कैसे? वचन में बने रहोगे ना, तो तुम्हारे लिए जो चाहे वो हो जाएगा, राइट। वो क्या है? वचन में ना, उसकी इच्छा के अनुसार जीना, उसकी सोच के अनुसार, जो मुझे ये मदद करेगा कि गॉड तेरी विल क्या है, तेरी मर्जी क्या है, और तेरा वचन ये कहता है कि तू उसे पूरा करेगा, राइट। और बोलता है उस प्रेम की सोच में बने रहेंगे तो क्या है, हमारे अंदर उसका आनंद रहेगा जो हमारा आनंद को पूरा करेगा ना। बने रहना, वहाँ पे बोलता है वचन में बने रहो, प्रेम में बने रहो, तो क्या होगा? वो जॉय पूरा होगा और वो फल लाएगा और वो परमेश्वर की महिमा करेगा। आमेन, आमेन। मुझे
Okay, good evening, church. सभी को गुड इवनिंग. And just for a brief, moment of time, कुछ क्षणों के लिए I want to think about the body of Christ. और मसीह की देह के बारे में मैं सोचना चाहता हूँ. And I was thinking about the last few weeks, पिछले कुछ हफ्तों से मैं सोच रहा था and even I shared about the greatness of Jesus Christ. और यीशु मसीह की महानता के बारे में भी मैंने आपको बताया. And then I shared about the greatness of about our salvation. और हमारे उद्धार के महानता के बारे में भी मैंने आपको बताया. And today I just wanted to think about the greatness of this house, which is the house of God. और आज मैं चाहता हूँ कि आप इस घर के बारे में जो परमेश्वर का घर है उसकी महानता के बारे में सोचें. When we think about salvation, जब हम उद्धार के बारे में सोचते हैं many times we think in that negative way. तो हम नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं. What I mean is that we think about, okay, salvation is the forgiveness of sin. और हम ऐसे सोचते हैं उद्धार मतलब पापों से क्षमा. But that's a one part. वो एक ही हिस्सा है. But there are many other elements involved. लेकिन दूसरे बहुत सारी चीजें इसमें शामिल There हैं are many privileges और बहुत सारी बड़प्पन की बातें like God has given us जो परमेश्वर ने हमें दी है with this salvation. इस उद्धार के साथ. And one of the things is that we are in His house. और पहली चीज उनमें से है कि हम उसके घर में हैं. I remember we took a mission trip to Ranchi. और हमें याद है हम रांची में मिशन ट्रिप के लिए गए थे. And the pastor Kishore Yadav, और पास्टर किशोर यादव जो वहाँ पे हैं. and we visited many places. और हमने बहुत सारे जगह पर वहाँ पे गए. One particular day we were visiting his church. और एक खास दिन पर हम उनकी कलीसिया में जब थे Then he showed us this is Mahendra Singh Dhoni's house. और उन्होंने हमें बताया कि महेंद्र सिंह धोनी का घर है It's a farmhouse, big one. और बहुत बड़ा फार्म हाउस जैसा था. And we looked at and we just passed that. और हमने देखा और आगे चले गए. We know that in many places this people go to see the celebrities' house. और बहुत सारे जगह पर लोग ऐसे बड़े जाने माने लोगों के घर देखने जाते हैं And they take photo. और फोटो भी लेते हैं. And this is they think it's an amazing privilege to see that. और उन्हें लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है कि हमने इसे देखा. For a minute, think about Mahendra Singh Dhoni's house. We are standing outside. आप सोचिए अगर महेंद्र सिंह धोनी के घर के बाहर आप खड़े हैं And then he opened the door and he opened the gate and is saying to us, come, this is your house. अगर वो सोचिए अगर वो अपना गेट खोल के बोले कि अंदर आ जाओ ये आपका ही घर है, Let's have some tea चाय पीजिए हमारे साथ and enjoy this day. और इस दिन का मजा लीजिए. Like we think, wow, this is amazing. और हम सोचेंगे ये कितनी अच्छी बात है This is an amazing privilege. और ये बहुत अद्भुत तरह से बड़प्पन की बात He's होगी. a cricket captain. वो क्रिकेट का कैप्टन है And being with him and in that his house is a special privilege. और उसके साथ रहना और उसके घर में जाना ये बहुत बड़प्पन की बात होगी. Think about it, इसी बारे में about सोचिए God. परमेश्वर के बारे में. Like we were not even able to enter his house. हम उसके घर में प्रवेश करने के लायक नहीं थे. But God has made a provision लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए प्रावधान through the किया. cross. क्रूस के द्वारा. Like through the cross we can enter his house. और क्रूस के द्वारा हम उसके घर में प्रवेश कर सकते This is हैं. what like in the book of Ephesians talks. और इफिसियों की किताब इसी के बारे में बात When करती we है. think about church, जब हम कलीसिया के बारे में सोचते like हैं many times church means that thought comes about the building. और जब हम कलीसिया के बारे में सोचते हैं तो कुछ इमारत हमारे सामने आ जाती है. But when we study the Bible, लेकिन हम बाइबल को जब पढ़ते हैं, like we study in our church, जब हमारे कलीसिया में हम पढ़ते हैं and as you study the Bible, और जैसे आप भी पढ़ते हो you बाइबल, find that church is much bigger. हमें पता चलता है कि कलीसिया इससे बहुत बड़ी है. We are church. हम ही कलीसिया We हैं. are the house of God. हम परमेश्वर के घर हैं. And in Hebrews chapter 12 talks about the church, like in heaven, like the people are entered, that's the church. और इब्रानियों में लिखा है कि जो स्वर्ग में गए हैं वो भी कलीसिया है. In Hebrews chapter 12, इब्रानियों 12 में. there is a congregation in heaven. और एक ऐसी सभा है जो स्वर्ग में है Like that is a part of the church. और वो कलीसिया का ही हिस्सा है. Like they are like entered into that presence of the Lord.
और वो लोग हैं जो परमेश्वर की समक्षता में प्रवेश कर चुके Pastor हैं। Carl Stevens, पास्टर कार्ल Rabbi स्टीवंस, Zacharias, रवि ज़करियास, Pastor Carl Silva, पास्टर कार्ल and सिल्वा many other men of God, women of God, even our own like believers, और simple believers in Christ. और जैसे बहुत सारे लोग जो परमेश्वर में है और जो विश्वासी, जो साधारण से विश्वासी, वो लोग भी। And when we come to church और जब हम कलीसिया on आते this हैं earth, इस धरती पर we are experiencing that. और हम इसका अनुभव करते हैं। Yes, we have troubles, और हाँ, हमें परेशानियां हैं temptations, और परीक्षाएं हैं failures, और हम गिरते हैं, but we enter into that house लेकिन हम उस घर में प्रवेश because करते it हैं has been opened to us. क्योंकि वो हमारे लिए खुला गया। In Mark chapter 9, मरकुस 9 में where Jesus talks about यीशु मसीह बातें करता it है is better to enter the kingdom or in his life with one hand और ये अच्छा होगा कि एक हाथ से उसके राज्य में प्रवेश करो than going to lake of fire or hell with two hands. और दो हाथों को लेकर आग की झील में या फिर नरक में जाने से It बेहतर है। is better to enter the life or the kingdom of God with one eye than enter into the lake of fire with two eyes. ये बेहतर होगा कि एक आंख से हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें बल्कि दो आंखें लेके अगर नरक में जाए। It is better to enter the house with the one foot than entering into that lake of fire or hell with the 2 feet. और ये बेहतर होगा कि हम एक पैर लेके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें और दो पैरों को लेकर नरक में जाने से। You think about that house. और उस घर के बारे में सोचिए। One hand guy, एक हाथ का मनुष्य one legged man, और एक पैर का मनुष्य like blind, one eye. और एक आंख से We are अंधा। all like that. और हम सब वैसे ही We are हैं। weaknesses. हमारे अंदर But कमजोरियां when हैं, we come into that house, लेकिन जब हम उस घर में आते we हैं hear the voices of the Lord. और हम उस परमेश्वर की आवाज़ों को सुनते हैं। Let's read this verse in Ephesians chapter 1, verse 19. और इफिसियों 1:19 हम Sorry, पढ़ेंगे। Ephesians chapter 2, verse 19. इफिसियों 2:19 माफ It कीजिए। says that now, therefore, you are no longer strangers and foreigners. इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। So, we are no more strangers, अब हम विदेशी नहीं हैं, no more foreigners, मुसाफिर नहीं हैं, but fellow citizens with the saints and the members of the house of God. लेकिन संगी स्वदेशी पवित्र लोगों के साथ और परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। What is that? इसका क्या मतलब है? The two metaphors here Paul uses. और दो ऐसे चित्रण पौलुस ने इस्तेमाल One, किए we हैं। are the citizens, और पहली चीज है कि हम अभी संगी स्वदेशी हैं and then comes that we are the members of the household of God. और परमेश्वर के घराने के लोग हैं We are Indian citizens, और हम भारत के रहवासी हैं। right? Many of us, हम में से बहुत सारे and we have we are belong to this country. और हम इस देश के वासी हैं। But that connection is like it's a external. लेकिन वो जो जोड़ है जो बाहरी है It's an impersonal connection. और इसमें कुछ व्यक्तिगत नजदीकी नहीं है। Like maybe the next on the road next street the person we are Indian citizens, we may not even know them. जैसे कि कोई रास्ते पे दूसरा व्यक्ति है, हम वो भी भारतीय है लेकिन हमारा उसके साथ कुछ रिश्ता नहीं है। But then the household of God, लेकिन परमेश्वर के घर में family, परिवार, it is a personal. और वो एक व्यक्तिगत It is not चीज है। external, it is internal. वो बाहरी चीज नहीं है लेकिन अंदर की है, We are रिश्ता है। not only the citizen of the kingdom of God. हम परमेश्वर के राज्य के रहिवासी ही नहीं है I am the citizen of India. और मैं इस भारत का रहवासी हूँ The prime minister don't even know me और प्रधानमंत्री मुझे नहीं जानते because it's external. क्योंकि ये बाहरी रूप से है It is very distant. और बहुत ही दूर ही है। But there is another thing is we are not only citizens but we are also the family of God. और हम भले ही उसके रहवासी नहीं हैं लेकिन हम उसके परिवार का हिस्सा हैं Because of Christ. यीशु मसीह की वजह से। So that's what he says, that और यही वो कहता है we are the members of the household of God. कि हम उस परमेश्वर के घराने के संगी स्वदेशी That's हैं। what will happen in the church. और कलीसिया में भी यही होता It's है। not perfect.
और ये परिपूर्ण नहीं है। I'm talking about in experiential way. अनुभव के तौर पे मैं बोलता हूँ, Like we can hurt each other. हम एक दूसरे को ठेस पहुंचा सकते हैं, Like we can disappoint another. एक दूसरे को निराश कर सकते Pastor हैं, can disappoint a congregation. और पास्टर एक सभा को निराश कर सकता है, It can happen. हो सकता है। But we come to that house with one leg, one hand, one eye. लेकिन उस परिवार में हम हमारा एक पैर लेके, एक हाथ लेके, एक आँख को लेकर आते हैं, Because something in that house, क्योंकि उस घर में कुछ है that is the life of God. जो परमेश्वर का जीवन It है, is supernatural. वो ईश्वरीय है, Like that's what you and I carry. और जो हम लेके चलते हैं, Because we make like that life is in us. क्योंकि वो जीवन हम में है, The life of Christ. यीशु मसीह का जीवन। That's what we are moving and we are doing things together. इसलिए हम चल फिरते हैं और चीजों को करते हैं, Because our church life is so important. क्योंकि कलीसिया का जीवन इतना महत्वपूर्ण It's so है, important. It influences, it protects this world. इस दुनिया को प्रभावित करता है, इस दुनिया को सुरक्षित रखता है। In 2 Thessalonians chapter 2, it talks about there is a restraining power in this world. और दूसरा थिस्सलुनीका तो 2 में लिखा है कि इस धरती पर एक ऐसी शक्ति है जो रोके रखी है। So God has so much interest in the church. तो परमेश्वर का इस कलीसिया में इतनी रुचि देता God है, has so much like his care for his people, his church, household of God. और परमेश्वर का जो घर है, उसके जो लोग हैं, विश्वासियों के प्रति वो इतना बिल्कुल ध्यान देता It's है। amazing to consider. और ये अद्भुत है इसके बारे में We सोचने के लिए। all have weaknesses, हम सब में ये कमजोरियां हैं, but I may lose one feet और शायद मेरे पास एक पैर मैं or खो maybe दूंगा, one eye, मेरा आंखें खो दूंगा but I शायद। can look at another guy say, hey, you don't have one hand, और लेकिन मैं दूसरे व्यक्ति को देख के कह सकता हूँ, अरे तुम्हारा तो एक हाथ नहीं है, but then I can be that hand. लेकिन मैं वो हाथ बन सकता हूँ, The other person can be my eye. और वो दूसरा व्यक्ति मेरी आंख बन सकता I है। believe that's an amazing because the life of God works in us. और ये अद्भुत रीति से होता है क्योंकि परमेश्वर का जीवन हम में काम करता There's है, no competition in that sense. और उसमें कोई स्पर्धा नहीं है, God is working in us. परमेश्वर हमें काम करता है। So like here it says that यहाँ पर वो कहता है, like we are no longer foreigners, we no longer strangers, अब हम परदेसी नहीं हैं, but अब we are the citizens of the we are citizens with the saints लेकिन हम पवित्र लोगों के साथ संगी स्वदेशी हैं and the members of the household of God. और परमेश्वर के घराने के लोग हैं। And like this is think about that. और इसके बारे में सोचिएगा, Because sometimes the situations can just overtake these things. क्योंकि परिस्थितियां इन चीजों के ऊपर हावी हो जाती हैं, News reports, और जो समाचार में जो आते like you हैं can see खबरें all kinds of negative things. और सारी नकारात्मक चीजें जब आती हैं, But then we go to God, तब हम परमेश्वर के सामने जाते hear हैं, this word. इस वचन को सुनते What हैं। is God promised us? परमेश्वर ने हमें क्या वायदा God says, दिया है? I'm preparing a place for us. वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूँ। John chapter 14, 1 and 2. यूहन्ना 14 का 1 और 2, That is in the future. वो भविष्य में है, But God also says, लेकिन परमेश्वर ये I've भी already कहता है, prepared a place in the body of Christ, in the house. मैंने पहले ही तुम्हारे लिए इस देह में, मसीह के देह में एक जगह बना दी है। The church is a place, it's a prepared place और कलीसिया एक तैयार की हुई जगह है, where we fit into that place. जहाँ पर हम जैसे जुड़ जाते हैं You अच्छे are से। a believer, like you have a church. और आप विश्वासी हैं, आपकी एक कलीसिया है, You're part of a universal church. और आप एक पूरी दुनिया के कलीसिया का भी हिस्सा है। But then it's also part of a local church. लेकिन हम स्थानीय कलीसिया का भी हिस्सा है। So I think there are 3 things about the privileges we are having in the house of God. लेकिन 3 जो बड़प्पन की बातें हैं जब हम परमेश्वर की देह में हैं। 1, पहला है, God is our Father. परमेश्वर हमारा पिता है, He is our Father. हमारा पिता है। And Jesus taught the disciples how to pray. जब यीशु मसीह ने शिष्यों को सिखाया कि प्रार्थना कैसे करनी है, He says that like our Father. तब वो कहता है हमारे पिता। Think about a big CEO of a company. और सोचिए कि एक बड़ी कंपनी का सीईओ है, Millions of rupees are they're handling. और वो लाखों पैसों और करोड़ों लोग पैसों को वो जैसे काम कर रहे Under हैं, him maybe thousands of people are working.
और उसके नीचे हजारों लोग काम कर रहे He may हैं। not know all those people. उनको शायद सब व्यक्ति नहीं पता He may होंगे, only know the big guys around him. और जो उनके आजू बाजू में रहते बड़े लोग उनको ही वो जानते He's होंगे, very busy. और बहुत ही व्यस्त रहता But है वो then व्यक्ति। knock at the door. और लेकिन जब दरवाजे पर खटखटाता है, Look at his child. उसके बच्चों को अगर देखो, Like his child is knocking. अगर उसका बच्चा आके खटखटाता And है, all of a sudden he leave that and he just like spend some time with that child. तो सारी चीजों को छोड़कर वो अपने बच्चे के साथ कुछ समय बिताता है, Right? Like it just to embrace a child. और अपने गले भी लगा लेता I think है। this is exactly like think about God. और उसी बारे वैसे ही परमेश्वर के बारे में सोचिए, All this universe is under him. पूरी ये दुनिया उसके हाथ में है, Right? Everything is upholding by his power. Word of his power. और उसके वचन के द्वारा सारी चीजों को उसने थाम के रखा है। But then लेकिन it comes to us. वो हमारे पास आता है, Lower than angels, the creatures, like the creatures created lower than the angels. और स्वर्गदूतों से भी नीचे ऐसे जो मनुष्य जाति को उसने बनाया है, He comes and embraces us. वो आके हमें गले लगा लेता है। Wow, what a privilege that. कितनी बड़प्पन की बात है, That is in the house of God. वो परमेश्वर के घर में ऐसे होता है। Our life is a house of God. और हमारा जीवन परमेश्वर का घर है। We can be very busy. हम बहुत ही व्यस्त हो सकते हैं, Like we can be engaged in the details of life. और हमारे दुनिया जीवन के चीजों में व्यस्त हो सकते हैं, But the primary thing is लेकिन मुख्य बात है we are in the house of God. हम परमेश्वर के भवन में हैं। 1 John chapter 3, 1 and 2 says, पहला यूहन्ना 3, 1 और 2 कहते हैं, Now behold, beloved, behold, now we are the children of God. और सोचो, देखो, ध्यान दो कि हम परमेश्वर के प्रिय बच्चे हैं, We are the children of God. और हम परमेश्वर के बच्चे हैं। Gospel of John is starting with this verse, John chapter 1, like in that initial verses, verse 12 says that whoever believes on him, he has given the right to become the child of God. और यूहन्ना के सुसमाचार में पहले अध्याय में आखिरी जो 12वां वचन है वो कहता है कि जिन्होंने विश्वास किया है उनको परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया है, संतान होने का He is अधिकार our दिया है। Father. वो हमारा पिता है। 2 Peter 1:4. दूसरा पत्रस 2:4, God has given us his divine nature. परमेश्वर ने हमें उसका ईश्वरीय स्वभाव दिया है। Divine nature. ईश्वरीय स्वभाव How like that's in the church. वो कलीसिया में है, When we come together come together, और जब हम इकट्ठा होते हैं there is a nature in us, हमारे अंदर एक स्वभाव है divine nature, जो ईश्वरीय है, which is laying down life, जो हमारे जीवन को नीचे कर देता which है, love one another. जो एक दूसरे से प्रेम करता है। That's in the house of God. वो परमेश्वर के घर में है। But God is interested in us. और परमेश्वर हमें रुचि लेता है। Jesus said that every hair of your head is numbered. यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारे सिर के हर एक बाल को मैंने गिना है। He cares for us. वो हमें बहुत संभालता है। That's one thing. Second thing about the privilege, और दूसरी चीज इस बड़प्पन के बारे में, we have his son. हमारे पास उसका बेटा है। 1 John chapter 5 says that he who has the son has the life. He who does not have the son doesn't have life. पहला यूहन्ना 1:5 कहता है कि जिसके पास पुत्र है उसमें जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं है उसमें जीवन नहीं है। He is interceding for us. और वो हमारे लिए प्रार्थना करता है। Think about that. और उसके बारे में सोचिए, Like praying for one another. एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, I think like that's a good thing for us. और हमारे लिए बहुत बड़ी चीज If you है। never prayed for a person, अगर आपने किसी व्यक्ति के लिए अब तक प्रार्थना नहीं की है, start with in your church. और आपके कलीसिया में से शुरू कीजिए। Right, a person you didn't pray for a long time. बहुत समय तक आपने उसके लिए शायद प्रार्थना नहीं की है, Start to pray. आप उसके लिए प्रार्थना करना You say, I शुरू don't like कीजिए। that person. आप कहोगे मुझे व्यक्ति पसंद नहीं, But start pray. लेकिन प्रार्थना करना Pray शुरू for that कीजिए। person. उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना Supernaturally, कीजिए, God can pour out that love for that person. और परमेश्वर अद्भुत रीति से और उसके लिए प्रेम आपके जीवन में उंडेल देगा, His son is praying for us. क्योंकि उसका बेटा हमारे लिए प्रार्थना He's करता है, interceding for us. हमारे लिए विनती करता है, And that's an amazing. और ये अद्भुत Romans चीज है। chapter 8 says that रोमियो 8 कहता है we are heirs of God, but also joint heirs with Jesus Christ. कि हम परमेश्वर के संतान हैं और उसके साथ साथ यीशु मसीह के साथ एक साथ उसके संतान हैं। It's amazing.
और अद्भुत है। Like that means whatever that belongs to the Son belongs to me. इसका ये मतलब होता है कि जो कुछ बेटे का है वो सब कुछ मेरा भी है। What a future we have. और कितना अद्भुत Bible भविष्य doesn't हमारा talk है। much about heaven. और बाइबल स्वर्ग के बारे में ज्यादा बातें नहीं Even करती in है Revelation talks about it. और प्रकाशित वाक्य थोड़ी सी बातें It करती है gives a symbolic and a picture images और वो हमें जैसे कि कुछ चित्रण देते हैं, because our mind cannot grasp what God has prepared for us. क्योंकि हमारा मन सोच भी नहीं पाएगा कि जो परमेश्वर ने हमें दिया है, We cannot grasp it. हम उसे समझ नहीं पाएंगे। Apostle John couldn't grasp it. और यूहन्ना जो शिष्य था वो But नहीं समझ पाया। it is amazing things God has prepared for us. और अद्भुत चीजें हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की है। We have the Spirit. Third privilege in the house is we have His Spirit. और तीसरी चीज है कि हमारे अंदर उसकी आत्मा है। Galatians 4 says that God has given us His Spirit so that we can call Him Abba, Father. गलातियों 4 कहता है कि परमेश्वर ने हमें उसकी आत्मा दी है जिसकी वजह से हम उसे अब्बा पिता करके पुकार सकते What हैं। a privilege in us. और हमारे अंदर ही इतनी बड़ी बात है। Angels are looking at us और स्वर्गदूत हमें देखते हैं and says that this is amazing. और वो देखकर कहते हैं कि ये अद्भुत है। Ephesians 3:10 says इफिसियों 3:10 कहता है church is making an impact in that angelic world. और कलीसिया वो जो दूतों की जो सेना है उसमें प्रभावी करती है, प्रभाव This करती is so है। important. और ये इतना महत्वपूर्ण है। Pastor Marty said like in these two questions, और पास्टर मार्टी ये 2 सवाल कहते हैं, like ask this question: इन 2 सवालों को पूछिए। how much does my private life influenced by my local church? और मेरा व्यक्तिगत जीवन कितना अपने स्थानीय कलीसिया से प्रभावित हुआ है। Isn't it? Church influences our private life. और कलीसिया हमारा व्यक्तिगत जीवन को प्रभाव करता है। That's why we fellowship one another. इसलिए हम एक दूसरे के साथ संगति That's why we करते have हैं। Bible college. इसकी वजह से हमारे पास बाइबल But कॉलेज second है। question: और दूसरा सवाल, how much does my private life influence the local church? और दूसरा सवाल है कि मेरा व्यक्तिगत जीवन कलीसिया के वो जीवन के ऊपर कैसे प्रभाव करता है। How can I impart in the local church? और मैं किस तरह से इस स्थानीय कलीसिया में कुछ चीजों को जोड़ सकता हूँ। Because if you are born again, if you are born again, you are like important to the church. अगर आप नया जन्म पाए हुए विश्वासी है तो आप कलीसिया के लिए महत्वपूर्ण है। It's so important. ये बहुत You महत्वपूर्ण are है valuable. और आप कीमती हो। When you are saved, God has placed in the church और आप जब विश्वासी बने तो परमेश्वर ने आपको इस कलीसिया में रखा है, and in your local church. आपके स्थानीय कलीसिया में। You say that I don't know much about Bible. आप कहोगे कि मुझे बाइबल ज्यादा नहीं That पता is है, okay. ठीक है। God wanted to, like God has placed you in the church. परमेश्वर ने आपको इस कलीसिया में रखा है। Your life of faith आपके विश्वास का जीवन encourages us, हमें प्रोत्साहित करता है, encourages one another. एक दूसरे को प्रोत्साहित करता That's है। what's so important. We treasure the people और इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम लोगों को कीमती जानते because we are हैं, blood bought, spirit indwelling believers. क्योंकि हम लहू से खरीदी किए गए पवित्र आत्मा से द्वारा निवासित ऐसे मसीह है। How can I find a fault और मैं कैसे दोष ढूंढूं when a believer and another believer is also bought by the same price? जबकि दूसरा विश्वासी भी उसी कीमत से खरीदा गया है। Church is a beautiful place. कलीसिया एक अद्भुत सुंदर जगह है That's amazing. और ये अद्भुत है This is our privilege. और ये हमारे लिए बड़ापन की With the बात है। privileges, लेकिन इसके साथ there's a great responsibility. जिम्मेदारी भी है। Isn't it? Jesus said, like, glorify your Father by doing good things. यीशु मसीह ने कहा कि अपने पिता की महिमा करो इन चीजों के द्वारा। So, like, talk to a child always not talk about himself, he talk about his parents. अगर आप बच्चों के साथ बातें करो तो बच्चा अपने बारे में बातें ज्यादा नहीं करता, अपने मम्मी पापा के बारे में ज्यादा बातें By करता है। studying the church, you will get the idea about the parents. अगर कलीसिया के बारे में अगर आप By studying about, like, talking to a child and spending time with the child, you will get to know about the parents, her parents or his parents. और बच्चे के साथ बात करके आपको पता चलेगा कि उनके माता पिता कैसे हैं। We are the children of God. हम परमेश्वर के बच्चे हैं। Let's reveal the Father.
और हम पिता को दर्शाएं। Divine nature is in us. हमारे अंदर ईश्वरीय स्वभाव है World needs to see this. और दुनिया को इसे देखने की जरूरत है। See the Father, पिता को देखना, see the Son, पुत्र को देखना see the Spirit. और पवित्र आत्मा को देखना। Amen. आमीन। May God bless. परमेश्वर आपको आशीष दे। Let's pray. आइए प्रार्थना Father, we करें। thank you. पिता, हम धन्यवाद करते हैं Thank you for the amazing privilege you've given to us. और जो अद्भुत चीजें आपने हमारे लिए दी है उसके लिए We धन्यवाद। are in the house of God, household of God, members of the household of God. और हम आपके परिवार का हिस्सा है। If anyone who is hearing, अगर कोई सुनता है you think you're not in the house of God, और आप सोचते हैं कि आप इस परिवार का हिस्सा नहीं है, you can say this simple prayer. आप इस साधारण सी प्रार्थना को कर सकते हैं। Jesus, come into my heart. यीशु मसीह मेरे हृदय में आओ, Forgive my sin. मेरे पापों को क्षमा I करो। want to be in that house. मैं उस घर में रहना चाहता I हूँ। want to be your child. मैं आपका बच्चा बनना चाहता हूँ। If you believe that prayer, in that अगर- prayer, अगर आपने इस प्रार्थना के द्वारा विश्वास किया है, you are in the house of God. आप इस परिवार का हिस्सा You हो, are a child of God. आप परमेश्वर की संतान हो। Thank you, Lord. धन्यवाद Lord, help परमेश्वर। us, Lord, हमें मदद कीजिए परमेश्वर, to cherish the church. इस कलीसिया को हम कीमती जाने। We thank you, Lord, for one another. हम धन्यवाद करते हैं एक दूसरे के लिए। We thank you. हम धन्यवाद Help us करते to हैं। pray for one another. हमें मदद कीजिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना Help us करने to के लिए, love one another. एक दूसरे से प्रेम करने के लिए। Thank you once again. धन्यवाद करते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। God bless. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you. धन्यवाद।